ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کورونا اور اومیکرون کی خطرناک لہریں فیصل آباد میں منڈلانے لگیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 96 کیسز رپورٹ، 3 اومیکرون کے مریض بھی سامنے آ گئے۔ گھر گھر ویکسینیشن مہم کی سست روی کے باعث کیسز میں اضافہ ہونے لگا۔ کورونا اور اومیکرون کی خطرناک لہریں فیصل آباد میں منڈلانے لگیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران فیصل آباد میں کورونا کے 96 جبکہ اومیکرون کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1200 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے۔ فیصل آباد میں کورونا کی مثبت کیسز کی شرح 8.4% ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری نے اعداد و شمار جاری کیے۔ مختلف سیکٹرز کے لیے SOPs بھی جاری کیے گئے۔ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 13 مسافروں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جنہوں نے مختلف پروازوں سے دبئی اور ابوظہبی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ متاثرہ مسافروں کی بیرون ملک روانگی روک دی گئی۔ جنگ میں محکمہ صحت کورونا پر قابو پانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 492 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے اور 8300 افراد کی ویکسینیشن کی گئی۔ کوئی مریض سامنے نہیں آیا، جبکہ چنیوٹ میں بھی کسی مریض میں کورونا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ فیصل آباد میں گھر گھر ویکسینیشن مہم کی سست روی کے باعث کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ رہی ہے۔ عمران اسلم، سٹی 41، فیصل آباد۔ اومیکرون کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر پنجاب حکومت کا اہم اجلاس طلب کیے جانے کا امکان۔ صوبائی حکومت نے NCOC کو لاک ڈاؤن کے حوالے سے سفارشات بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبہ بھر میں لاک ڈاؤن لگانے کا عندیہ دے دیا۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں سمیت مختلف سیکٹرز کی بندش کے حوالے سے تجاویز زیر غور لائی جائیں گی، جبکہ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا پابندیاں نہیں لگانا چاہتے، عوام احتیاط کریں، اومیکرون معمولی وائرس نہیں، خطرناک ہو سکتا ہے، ویکسینیشن اور بوسٹر ڈوز بہت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا مساجد میں SOPs کے مطابق باجماعت نماز ادا کی جائے، ویکسینیشن کے 6 ماہ کے بعد بوسٹر ڈوز لازمی لگوائی جائے۔ کسانوں کے مسائل ختم نہ ہوئے، اپوزیشن بھی حکومتی پالیسیوں کے خلاف میدان میں آ گئی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر فیصل آباد اور جھنگ میں ٹریکٹر مارچ آج ہوگا۔ تیاریاں مکمل، رہنماؤں کی اہم بیٹھک لائے عمل تیار کیا گیا۔ فیصل آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ٹریکٹر مارچ کی تیاریاں مکمل۔ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے ڈویژنل نائب صدر اشفاق احمد کے ڈیرے پر اجلاس ہوا۔ مارچ کو کامیاب کرنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ٹکٹ ہولڈرز PP 117 چودھری صادق جٹ، میاں بشارت اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈویژنل نائب صدر چودھری اشفاق کا کہنا تھا کہ حکومت نے کسانوں کو بھی مشکلات میں ڈال رکھا ہے۔ ملک میں کھاد کا بحران ہے، زرعی آلات اور بیجوں پر ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی۔ چودھری صادق جٹ نے کہا کہ سمندری روڈ پر کسانوں سے یکجہتی کے لیے بھرپور ٹریکٹر مارچ ہوگا۔ غریب کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، کسان کی زمینیں بنجر ہو چکی ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستانی عوام کی بات کی ہے۔ ہم کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کل انشاءاللہ تعالی ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کے زیر اہتمام ہمارے جو ضلع کے صدر ہیں چودھری اعجاز صاحب سمندری روڈ پہ، وہاں سے انشاءاللہ ہم مارچ کا آغاز کریں گے جو شہر کے اندر آئے گا۔ کل انشاءاللہ چودھری اعجاز احمد کے ڈیرے سے ہم ٹریکٹر ٹرالی مارچ اپنے چیئرمین کی ہدایت پر کر رہے ہیں، اور بھرپور طریقے سے جو حکومت کی عوام کش عوام دشمن پالیسیاں ہیں اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ کسانوں کو ریلیف نہیں دیتے۔ ادھر جھنگ میں بھی ٹریکٹر مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے پیپلز پارٹی رہنماؤں نے سر جوڑ لیے۔ ضلع سیکریٹریٹ PP میں مرکزی لیبر ونگ کے اراکین کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کسانوں کو درپیش مسائل بارے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ ہم لوگ کسان ٹریکٹر ٹرالی مارچ کا اہتمام کیا ہے۔ کل ہمارا ضلع جھنگ میں کسان ٹریکٹر ٹرالی مارچ ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ جب تک ملک میں کسانوں کو خوشحال نہیں کیا جاتا اس وقت تک ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ پیپلز پارٹی کے ٹریکٹر مارچ میں کسان رہنما بھی بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں سوئی گیس بحران کم نہ ہو سکا، شارٹ فال یومیہ 40 ملین کیوبک فٹ ہو گیا۔ رہائشی علاقوں میں سوئی گیس کا پریشر انتہائی کم، گھریلو صارفین کو کھانا بنانے میں مشکلات کا سامنا۔ شدید سرد موسم میں گیس نہ ملنے سے چھٹی کا مزہ بھی پھیکا ہو گیا۔ ایک طرف سردی زوروں پر ہے تو دوسری جانب سوئی گیس پریشر میں بہتری نہ آ سکی۔ گلستان کلونی، نصیر آباد، احمد آباد میں سوئی گیس غائب، پریشر انتہائی کم۔ علاقہ میں کنوں کا کہنا ہے کہ رات کے پچھلے پہر گیس آتی ہے جبکہ دن بھر غائب رہتی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ گیس نہ ہونے سے گھر میں کھانا بنانے میں انتہائی پریشانی کا سامنا ہے، مہنگی LPG استعمال کرنا پڑتی ہے یا پھر بازار سے کھانا خریدنا پڑتا ہے۔ سردی جب کی سٹارٹ ہوئی ہے، موسم چینج ہوا ہے، اس سے پہلے کی یہ روٹین بن گئی ہے کہ صبح دفاتر، اسکول، کالج، یونیورسٹی ٹائم نہ گیس آنی نہ کچھ، فجر کے بعد ہوتی ہے تھوڑی دیر 2 4 5 10 منٹ کے لیے
आती है एकदम ही फिर गायब, सारा दिन नहीं आनी, रात आनी है लेट, कोई 1-1:30 बजे आनी है, उसमें ही हांडी रोटी करनी है अगले दिन के लिए। वो गैस आ गई, कई दफ़ा 2-2 3-3 दिन भी नहीं आती। शहरियों ने मुतालबा किया कि सुई गैस हुकाम खाना बनाने के औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाएं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। चिन्योट के फैसलाबाद रोड पर वाक़ आबादियां हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर, दर्जनों इलाकों में सुई गैस की सहूलत ताहाल न पहुंच सकी। चिन्योट सिटी, शमशुल हसन टाउन, भुट्टो कॉलोनी समेत दीगर इलाके सुई गैस से महरूम। मुकीम चूल्हा जलाने के लिए महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हो गए। शहर के मुतअद्दिद इलाके सुई गैस की सहूलत से महरूम हैं। फैसलाबाद रोड पर वाक़या चिन्योट सिटी, शमसुल हसन टाउन, भुट्टो कॉलोनी व दीगर इबादियों में सुई गैस सिरे से ही मौजूद नहीं। इलाका मकीनों को घर का चूल्हा जलाने में मुश्किलात का सामना है। 12 साल बाद भी इलाका मकीनों को सुई गैस की सहूलत न मिल सकी। मकीनों का कहना था कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने वादे किए लेकिन वफा न हो सके। चूल्हा जलाने के लिए महंगे दामों लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर है। मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी लेकिन सुई गैस की सहूलत फराहम न की जा सकी। ये जो हमारे इलाके हैं, चिन्योट सिटी है, मक्की टाउन है, ये भी नहीं कि चिन्योट सिटी से बहुत ज़्यादा दूर हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये 2 किलोमीटर का फासला है, वहाँ तक भी अभी तक ये गैस नहीं पहुँचा सके। अवामी नुमाइंदों से भी हमारा तो मुतालबा है कि यहाँ तक कम अज़ कम गैस पहुँचाई जा सके, क्योंकि जो सार्फिन है हमारे, वो जो सिलेंडर है वो हमारी पहुँच से बाहर है और हमें इस मौसम में खास तौर पर बहुत शदीद दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीनों ने हुकूमत और मुंतखब अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया कि हंगामी बुनियादों पर चिन्योट सिटी, शमसुल हसन टाउन, भुट्टो कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में सुई गैस की सहूलत फराहम की जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर किरयार, सिटी 41, चिन्योट। बिजली से महरूम फैसलाबाद के इलाकों की सुनी गई। 40 देहातों में बिजली फराहम करने के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट मंजूर। नए देहातों में 177 LT प्रपोजल्स मुकम्मल की जाएंगी। बिजली से महरूम इलाकों में बिजली फराहम करने के लिए फेस्को की जानिब से मुख्तलिफ LT और LT मनसूबाजात पर काम जारी है। इसी सिलसिला में फेस्को की जानिब से 40 देहातों में बिजली फराहम करने के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया है। फेस्को की जानिब से 177 LT प्रपोजल जनवरी के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बिजली से महरूम इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद का कहना है कि बिजली बुनियादी जरूरियात में से है, जिसकी सहूलत मिलने पर खुश हैं। बहुत सारे नए इलाके, जो नई इजाफी आबादियाँ हैं, जो बहुत सारे नए मोहल्ले बने हैं, लेकिन डेवलपर या वहाँ पे बिजली नहीं लग सकी, ठीक है, और जिनमें ये भी जो बहुत सारी टाउन हमारे शामिल है जहाँ पे डेवलपर ने पैसे लिए अपनी जेबों में डाले और भाग गए, बिजली नहीं लगवा के गए। हमारे ना बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, तो जो डेवलपर हजरात ने वो जो अपना काम अधूरा छोड़ के चले गए हैं, हमें यानी कि फेस्को से, वापटा वालों से इनके गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा कुछ सोचें। फेस्को की जानिब से फैसलाबाद रीजन भर की इजाफी आबादियों और देहाती इलाकों में बिजली फराहम करने के लिए मनसूबाजात पर काम जारी है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। आपको बताएं, महकमा एंटी करप्शन ने सालाना रिकवरी रिपोर्ट DG को अरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में 91 करोड़ से ज्यादा की रकम रिकवर की गई। रिश्वत लेते गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन से 7,39,000 रुपए रिकवर किए गए। 14,36,000 करप्शन की रकम एंटी करप्शन के अकाउंट में जमा करवाई गई। 1,88,43,000 से ज्यादा रकम वसूल करके फरीकैन की सुलह करवा दी गई। 1,65,23,000 रुपए जायद इनडायरेक्ट रिकवरी की गई। 87 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मालियत की सरकारी जमीन वागुजार करवाई गई। अभी आपको अहम खबर से आगाह करें, मोटरवे पर धुंध छा गई। मोटरवे M3 ननकाना से लाहौर तक बंद कर दी गई। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं आपको, मोटरवे पर धुंध छा गई है। मोटरवे M3 को ननकाना से लाहौर तक बंद कर दिया गया है। आपको बताएं, मोटरवे पर धुंध छा गई। मोटरवे M3 ननकाना से लाहौर तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं आपको, मोटरवे पर धुंध छा गई है। मोटरवे को M3 ननकाना से लाहौर तक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बताएं, मोटरवे पर धुंध छा गई। मोटरवे M3 को ननकाना से लाहौर तक बंद कर दिया गया है। अहम खबर से आगाह करें, मोटरवे पर धुंध छा गई है, जिसकी वजह से मोटरवे को M3 ननकाना से लाहौर तक बंद कर दिया गया है। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं आपको, मोटरवे पर धुंध छा गई है, जिसकी वजह से मोटरवे M3 को ननकाना से लाहौर तक बंद कर दिया गया है। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, मोटरवे पर धुंध छा गई। मोटरवे M3 ननकाना से लाहौर तक बंद कर दी गई। मोटरवे पर धुंध छा गई। मोटरवे M3 ननकाना से लाहौर तक बंद कर दी गई। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान हैदर से हमने राब्ता किया है। जी उस्मान हैदर, बताइएगा क्या सूरत हाल है धुंध की मोटरवे पर?
जी बिल्कुल, कौमी शाहराह और मोटरवे पे धुंध के बादल छाने लगे हैं, जिसके नतीजे में जो है वो मोटरवे M3 को लाहौर से ननकाना तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हद निगाह 100 मीटर से कम है, जिसके बायस तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए मोटरवे को बंद किया गया है। जो ही हद निगाह बेहतर होगी तो तमाम मुसाफिरों को मोटरवे पे जाने की इजाजत दे दी जाएगी। इस हवाले से मोटरवे तर्जमान का ये भी कहना है कि शहरी जो है वो गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, धुंध में सफर करते हुए फोग लाइट का इस्तेमाल करें और किसी भी किस्म की मोटरवे के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने के लिए मोटरवे की हमसफर ऐप से भी मालूमात ली जा सकती है, जबकि इमरजेंसी या नागहानी सूरत हाल में मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पर भी राब्ता किया जा सकता है। जी, हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे खोल दी जाएगी। उस्मान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। FBI ने $2000 या उससे महंगे मोबाइल्स पर 17% सेल्स टैक्स लागू कर दिया। टैक्स गुजारों को सेल्स टैक्स और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर करने का इख्तियार भी FBI को दे दिया गया। इकदाम से कीमतों में 70,000 रुपए तक इजाफा होगा। $2000 से कम मालियत के मोबाइल फोन पर टैक्स का पहला रिजीम ही बरकरार रहेगा। FBI कारोबारी अफराद को टायर 1 कैटेगरी में भी रजिस्टर कर सकेगा और इसके साथ साथ सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में भी रजिस्टर किया जाएगा। टोबा टेक्सिन रजाना रोड में शुगर मिल राहगीरों के लिए दर्द सर बन गई। मेन रोड पर खड़ी गन्ने की ट्रॉलियों से ट्रैफिक कई घंटे जाम रहना मामूल बन गया। एम्बुलेंसेस को रास्ता ना मिलने से मरीज भी अजियत से दो चार होते हैं। टोबा टेक्सिन के रजाना रोड तहसील कमालिया में मौजूद मुकामी शुगर मिल राहगीरों के लिए दर्द सर बन गई। मेन रोड पर खड़ी गन्ने की ट्रालियों की वजह से ट्रैफिक कई घंटों जाम रहना मामूल बन चुका। एम्बुलेंसों को रास्ता ना मिलने से मरीज भी अजियत से दो चार हैं। शुगर मिल यहाँ पे बड़ी मौजूद है, लेकिन आए रोज जो है ना, जो अब सीजन होता है तो उस वक्त गन्ने की ट्राली की वजह से ट्रैफिक जो है जाम रहती है। एम्बुलेंसों को गुजरने में बड़ी दुश्वारी पैदा होती है। शहरियों का कहना था ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से एम्बुलेंसों को भी रास्ता नहीं मिलता। आए रोज हादसा से जानी और माली नुकसान मामूल बनता जा रहा है। हुकाम नोटिस लें और गन्ने की ट्रालियों को फौरी मेन रोड से हटाया जाए। रात के टाइम जो है ना, शुगर मिल रोड बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद होता है और शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी हकाम आला से ये गुजारिश है कि इस रोड को डबल किया जाए। शहरियों ने जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर नोटिस लेने और बढ़ते हादसा समेत ट्रैफिक मुश्किलात के खात्मे के लिए इकदामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन जवाद नासिर के हमरा रिजवान खान, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। दूसरी जानब चिन्नौट शहर के जनाजगा रोड पर बारिश के बाद सूरत हाल अबतर। टूटे रोड पर पानी और कीचड़ में से गुजरना मुहाल। गुज़िश्ता कई साल से रोड की तामीर भी ना हो सकी। शहरी MNA और MPO को कोसने लगे। चिन्नौट शहर के जनाजगा रोड पर बारिश के बाद सूरत हाल अबतर हो चुकी है। टूटे रोड पर पानी और कीचड़ में से पैदल और गाड़ियों पर गुजरना महाल हो चुका है। शहरियों का कहना है गुज़िश्ता कई साल से रोड की तामीर नहीं हो सकी। MNA MPA सिर्फ इलेक्शन में आते हैं, बारिश के अलावा आम दिनों में भी गुजरना मुश्किल होता है। आज तक किसी ने जनाजगा रोड पर तवज्जो नहीं दी। रोड जो है काफी अरसे से इसी तरह ही है। आए दिन जब भी बारिश होती है ना, यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। कोई यहाँ पे आता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बारिश हो जाए ना, हम नमाज पढ़ने के लिए भी ऐसे बहुत परेशानी हमें उठानी पड़ती है। ये सामने हॉस्पिटल, हम यहाँ नहीं जा सकते हैं, इतनी परेशानी है। मेहरबानी करो जी, जो गटर है ना, सफाई होनी चाहिए जी। सारा तोड़ तक बच्चे लगते हैं, जनानियां लगते हैं, डिगते हैं जी। शहरियों का कहना है MNA MPA अपोजिशन से ताल्लुक रखने की वजह से तरक्याती काम करवाने से कासिर है। जिला इंतजामिया सड़क की मुरम्मत और नकासी का निजाम बेहतर बनाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41, चिन्नौट। फैसलाबाद में बल्दियात के हवाले से अहम खबर। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान ने मौजूदा एक्ट में तब्दीली का मुतालबा कर दिया ताकि अवामी मसाइल बेहतर तरीके से हल हो सकें। साबिक यूसी चेयरमैन गुलाम बेग अवान का कहना है कि आर्डिनेंस में मुतनासिब नुमाइंदगी रखी गई, मगर पहले की तरह हर इलाके से नुमाइंदगी शामिल नहीं है, जिसकी वजह से इन इलाकों के मसाइल की तर्जमानी हाउस में नहीं हो सकेगी। वो नुमाइंदगान जो बतौर चेयरमैन अपनी यूनियन काउंसिल से, नेबरहुड काउंसिल से मुंतखब होंगे, तो उनको आगे अपनी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए इस ऑर्डिनेंस में कदगन लगा दी गई, चूँकि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के या ज़िला काउंसिलों के वो मेंबर नहीं होंगे। गुलाम बहीक अवान ने जोर दिया कि स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ लाजमी शामिल किया जाए, इससे बेहतरी आएगी। मैं ये चाहूँगा कि बेशक यूनियन काउंसिल का साइज़, उसका नाम खा नेबरहुड काउंसिल रख दें, विलेज काउंसिल रख दें, लेकिन उसका साइज़ बड़ा कर दिया जाए और साइज़ बड़ा करके इन नुमाइंदगान को, जिनका इंतखाब बराह रास्त उनके हल्का के अवाम करेंगे, उनको कम अज़ कम वहाँ पर नुमाइंदगी जैसे कि माजी में था, उनको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस में और ज़िला काउंसिल्स में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। बल्दियाती नुमाइंदगान का मौक़िफ़ है कि इन्हें नज़रअंदाज करके नया ऑर्डिनेंस नाफिज करने से मसाइल में इजाफा होगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। कोरोना केसेस में इजाफा, हुकूमत का सिनेमा और थिएटर में 50% लोगों को बैठने की इजाज़त देने का फैसला। स्टेट ड्रामा राइटर फट पड़े, कहते हैं हुकूमती फैसले से थिएटर का नुकसान होगा। 1.5 साल पहले भी सिनेमा और थिएटर्स को बंद रखा गया था।
वायरस की शरह में इजाफा हुआ तो सिनेमा और थिएटर्स पर भी खतरात मंडलाने लगे। हुकूमत की जानिब से सिनेमा और थिएटर में 50% लोगों को बिठाने का फैसला किया। ड्रामा डायरेक्टर और राइटर्स तिलमिला उठे। इनका कहना है कि अभी गुज़िश्ता साल बंद थिएटर का नुकसान पूरा नहीं हुआ, ऊपर से नई पाबंदियां आर्टिस्टों का माशी कत्ल है। तो 50% की गैदरिंग के साथ या जो SOPs कह रहे हैं वो पहले भी हम उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं काफ़ी हद तक। लेकिन जो पिछले कर्जे हैं, जो पिछले कोरोना की वजह से थिएटर बंद हुए हैं, उनकी वजह से आज तक आर्टिस्ट जो है वो अपने पाँव पे नहीं आ सके। और वो बेरोजगारी का आलम ये है कि जो पिछले उन्होंने कर्ज उठाए हुए थे वो कर्ज अभी तक नहीं उतरे। प्रोड्यूसर्स का कहना था कि अगर लोग कम तादाद में आएं तो नुकसान होगा, पहले ही अखराजात पूरे नहीं हो रहे, हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। पहले ही पब्लिक बहुत कम आती है, तो अगर ये 50% लोग हम बैठाएंगे तो जो हमारे अखराजात है वो पूरे नहीं होंगे। तो हमारी तो यही दुआ है कि ये कोरोना की जो वबा है ये ऐसे ही टल जाए। ये हम फनकारों पर पहले भी बहुत भारी साबित हुई थी और ये बीमारी अब भी मुझे लग रहा है कि बहुत भारी साबित होगी। तो हम ना खुश हैं इस फैसले से, ओवरऑल सभी फनकार ना खुश हैं। थिएटर मालकान का कहना है कि पहले ही SOPs पर अमल कर रहे हैं और मास्क के बगैर लोगों को इजाजत नहीं दे रहे। कैमरामैन मौजम के साथ हाशिर वड़ाइज, फैसलाबाद। फैसलाबाद में पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। DHO की जानिब से जिला भर के लिए पोलियो टीमें तश्कील दे दी गई। टीमें लालपुर डिवीजन, मदीना, इकबाल सदर डिवीजन और जड़ावाला डिवीजन में फराइज सर अंजाम देंगी। 24 जनवरी से 28 जनवरी तक पोलियो मुहिम के लिए सिक्योरिटी प्लान भी जारी कर दिया गया। पुलिस नफरी पोलियो टीम के साथ इलाके में दाखिले से इनखला तक इनकी हिफाजत की जिम्मेदार होगी। पोलियो मुहिम के लिए 717 FC, 71 हेड कांस्टेबल, 11 ASIs और 18 GOs फराइज सर अंजाम देंगे। थानों में रजिस्टर्ड नंबर 8 की बोगस तकमील होने का इंकशाफ। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकर ने नोटिस ले लिया। CPO फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकर ने नोटिस में कहा, क्राइम रिकॉर्ड दफ्तर में मुल्जिमान के फिंगरप्रिंट्स लगवाए जाएं और इस रजिस्टर में तकमील की जाए। बोगस चालान फॉर्म या किसी भी चीज का बोगस इंदराज करने पर सख्त कार्रवाई होगी। सिटी पुलिस ऑफिसर ने तहरीरी अहकामात जारी कर दिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में तैनाती की समरियों की मंजूरी दे दी। GCU फैसलाबाद रजिस्ट्रार डॉक्टर नईम इकबाल के एडिशनल चार्ज में 6 माह की तोसी। कोहसार यूनिवर्सिटी मरी में ग्रेड 20 डॉक्टर मोहसन इकबाल रजिस्ट्रार तैनात। सैयदा जुरियतुज़ ज़हरा कंट्रोलर इम्तिहानात फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी तैनात।